China-Pakistan Economic Corridor, which is commonly known as CPEC. The abbreviation of China-Pakistan Economic Corridor is CPEC. इस टर्मिनोलॉजी को अगर हम देखें तो आपको टर्मिनोलॉजी के अंदर दो तीन चीजें बड़ी सिंपल सी नजर आएंगी. द फर्स्ट वन इज द चाइना, द अदर वन इज द पाकिस्तान, and then the word economic, and then the word corridor. Two are the countries in this terminology, and two are the nouns, verbs, whatever you can say. Economic corridor, इक्तिसादी राहदारी. ये राहदारी क्या होता है? कॉरिडोर जिसको हम राहदारी का नाम देते हैं, जो अमूमन हम लोग अपने घरों में, अपनी बिल्डिंग्स में बनाते हैं. राहदारी क्या होता है? राहदारी एक ऐसा लंबा जगह होती है which connects one point to the other one, which connects one point and other one, और इसका मरकज होता है अ passage. ये एक passage होता है. इधर आप खड़े हो के आप रहते नहीं है इसमें, ये आपका बेडरूम नहीं होता. This is primarily used for a passage, कि आपने इसको सिर्फ पास करना होता है, इधर चलना होता है और चल के वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाना होता है. So the same cases with the China-Pakistan economic corridor. Simple words के अंदर this will be a road. ये एक रोड होगी जो कि कनेक्ट करेगी चाइना को पाकिस्तान के साथ. चाइना के इलाके जिनजियांग को कनेक्ट करेगी पाकिस्तान के एक साहिली इलाके, पाकिस्तान की सी पोर्ट ग्वादर को. So the connectivity of 2 points, China, the Xinjiang province, which is already on the border of Pakistan, तो Xinjiang को connect करेगी through a road, a wide road to a Pakistan seaport Gwadar. So this connectivity is called as China-Pakistan Economic Corridor. अब मैं आपको इसका मैप बनाता हूँ, फिर इसके हम प्रॉपर आएंगे, इसके डिफरेंट पॉइंट्स की तरफ आएंगे. सबसे पहले मैं आपको एक मैप ड्रा करके बता देता हूँ. This is, for instance, the China, which I'm trying to draw with the red line. This is China. इसको मैंने C लिख दिया. And the other line, this is Pakistan. ठीक, ये दो इलाके, this is Pakistan, this is China. ये पाकिस्तान की एक ग्वादर सी पोर्ट है. सी पोर्ट तो आप लोगों को पता ही होता है, एक ऐसी खुशकी की जगह जिसके साथ बिल्कुल समुद्र मौजूद होता है. दिस इज ग्वादर, जिसको मैं डिफरेंट लाइन के साथ चले लिख देता हूँ. दिस इज ग्वादर. बलोचिस्तान के अंदर एक सी पोर्ट है जिसका नाम है री ग्वादर. ओके, what is this China-Pakistan economic corridor? In simple word, the China-Pakistan corridor is a name of a road. This is a name of a road which will connect Chinese province Xinjiang to Pakistani seaport Gwadar. This is the entire concept of the China-Pakistan economic corridor, that China is going to construct a road which will connect the Chinese province to the Pakistani seaport Gwadar. This is a simple and the entire concept of China-Pakistan economic corridor. And why it is called as economic? Economic means कि that इसके ऊपर कुछ economic activities होंगी. Economic activities क्या होंगी कि there will be containers that will
start their journey from China. They will enter into this economic corridor and they will reach at the Gwadar. This is G, the Gwadar. Gwadar पर पहुंचेंगे and यहाँ से फिर वो लोड किए जाएंगे कंटेनर्स को शिप्स के ऊपर. शिप्स के ऊपर बिकॉज ग्वादर इज अ सी पोर्ट है तो इसके साथ सी लगता होगा एंड दोज शिप्स विल सेल थ्रू द वर्ल्ड और पूरी दुनिया के अंदर वो सेल थ्रू करेंगे और जाएंगे. दिस इज सो the question is that why this simple phenomena is so much important not only for the Pakistan but also for the China. Why this simple phenomena, this simple road, this simple connectivity, this simple corridor. ये एक रोड, ये एक छोटा सा कॉरिडोर which will be about 2300 kilometer. The length of this road will be about 2300 kilometers. You guys must know about it. कि 2300 किलोमीटर की एक रोड होगी. ये स्टार्टिंग पॉइंट यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक. तो China Pakistan economic corridor, a 2300 kilometer long road which will start from the China and that will end at Gwadar, a seaport of Pakistan. And mostly this road will be used for economic activities. There will be trucks, there will be containers that will be riding on this road, and after that, after reaching this Gwadar, they will be sail through the entire world through the ships. Okay, so the question is that why this China Pakistan economic corridor is so much important. उसके लिए मैं आपको बता दूं, there is a historical perspective. हिस्ट्री सबसे पहले देख लेते हैं इसकी. हिस्टोरिकली और थोड़ा सा इसको अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में भी बताया था, और जब हम फेजेस ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हम लोग चीजें देख रहे थे. द चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी. चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. It means that China has the second largest assets of amount right after USA in this world. So China always try to become the largest economy, the number one economy of the world, and try to be the richest country of this world. अब जाहिर सी बात है, जो कंट्री दूसरे नंबर का कंट्री है पैसों के लिहाज से, वो कभी ना कभी फर्स्ट नंबर का कंट्री बनने की भी कोशिश करेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो पैसा है, जो इकोनॉमिक रिजर्व्स हैं, वो मेरे पास मौजूद रहे, मैं दुनिया का सबसे मालदार मुल्क बन जाऊं. अब क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि चाइना दूसरे नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बनी. तो डेफिनेटली इसका सिंपल सा आंसर है कि आफ्टर 1974 के बाद चाइना ने अपनी इंडस्ट्री को इतना ज्यादा ग्रो कर लिया, और चूंकि चाइनीज पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो उन चाइनीज पॉपुलेशन ने सबसे ज्यादा इंडस्ट्री के अंदर काम किया, और उस इंडस्ट्री की गुड्स जो थी, इंडस्ट्री की प्रोडक्शन, उसको पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया. अब चाइना इस वक्त दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है. चाइना की एक्सपोर्ट्स दुनिया में सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से ये चाइना का दूसरे नंबर का अमीर तरीन मुल्क बना हुआ है. अब डेफिनेटली इन ऑर्डर टू बिकम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री, द चाइना हैज टू प्रमोट इट एक्सपोर्ट्स. उसको मजीद एनहेंस करनी पड़ेगी. 1974 से लेकर अब तक उसने जितनी एक्सपोर्ट्स की हैं, वो उसको सेकंड नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बना चुकी हैं. एंड नाउ इन ऑर्डर टू बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की एक नंबर की इकोनॉमी, द लार्जेस्ट सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए चाइना को क्या करना होगा? सिंपल वही फार्मूला करना होगा कि चाइना हैज टू इंक्रीज इट्स इंपोर्ट्स. अपनी इंपोर्ट्स को मजीद इंक्रीज करना होगा. अब इंपोर्ट्स को मजीद इंक्रीज करने से मजीद इंक्रीज करने के लिए और मुमालिक के अंदर अपना
अपनी गुड्स बेचने के लिए चाइना क्या कर रहा है कि चाइना इज लुकिंग फॉर डिफरेंट पासेजेस, कुछ ऐसे रोड्स की तरफ देख रहा है, ऐसे रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है कि जिसकी वजह से चाइना की प्रोडक्शन बहुत जल्दी, इफेक्टिवली, स्मूथली एंड सिक्योरली इन इन चीज़ों के ऊपर रिलाई करते हुए वो दूसरे मुल्क तक अपनी एक्सपोर्ट्स को पहुंचा दे. So China is looking to construct, looking to build, is looking to establish different mechanisms, different roads, different infrastructures in the world in order to enhance or promote its exports, just to अपनी exports बढ़ाने के लिए. वो दुनिया के अंदर अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए कई ममालिक के अंदर रोड्स बना रहा है, रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है. एंड दिस the entire idea and the entire program is called as One Belt One Road. जिसको आम लफ्ज में ओ बोर भी कहते हैं. सो वन बेल्ट वन रोड, नाम से ही जाहिर है कि देयर विल बी वन रोड that will start from China, and that road will pass through the many countries of the world which will be the customer of China. तो एक रोड होगी जो कि चाइना से स्टार्ट होगी और वो मुख्तलिफ मुल्कों से चलते 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 वो पास करेगी, और जिस मुल्क को जो चीज चाहिए होगी वो उस रोड के ऊपर ही ट्रेडिंग होगी सारी उसकी. और चाइना कम वक्त के अंदर ज्यादा इफेक्टिवली और ज्यादा स्मूथली अपनी एक्सपोर्ट्स को दूसरी दुनिया तक पहुंचा सकता है. सो दिस the entire procedure or the entire idea is known as the one belt one road. So CPAC is a small chunk or one of the small idea, one of the small part of this one belt one road. So CPAC is also a part of this huge procedure. If this the huge idea, the big idea is called as the One Belt One Road, and the CPAC China Pakistan Economic Corridor is one of the small part of the OBOR. Or you may also say that ke OBOR is starting from CPAC. The starting point of OBOR is CPAC, and then this road will pass through different countries like this is Russia, this is Russia, which is the neighboring state of China and Pakistan. Then there are then there is Afghanistan. This is Afghanistan. And then there are Central Asian states, जिनको आप ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, तुर्कमानिस्तान कहते हैं. There are these 5 Central Asian states जिनके ऊपर स्थान आता है. So this road will pass through those countries also. So this will be a huge road. एक बहुत लंबी रोड होगी. ये इस तरह से दूसरे मुल्कों के अंदर भी पास कर रही है. And this idea, the whole procedure, the whole establishment is known as the OBOR. ये OBOR कहलाता है कि वन बेल्ट वन रोड. एक रोड हो, चाइना से स्टार्ट हो, पूरी दुनिया में घूमे, ताकि चाइना का माल इफेक्टिवली, स्मूथली एंड सिक्योरली पूरी दुनिया तक पहुंचे. और पाकिस्तान का ये जो चंक है, जो पाकिस्तान का पार्ट है, जो पाकिस्तान के अंदर चीज कंस्ट्रक्ट हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. ठीक है, ये तो होगी इसका इंट्रोडक्शन. अब देखते हैं कि व्हाट आर चाइनीज बेनिफिट्स.
ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है जी मकासद, क्या चाइना के क्या मकासद हैं इस सीपैक को लेकर, क्या फ़ायदे हैं उसके, क्या उसको बेनिफिट्स होंगे, क्या उसके ज़ेर में प्लानिंग है, तो वो हम चीज़ें देखते हैं कि व्हाट चाइना इज लुकिंग फ्रॉम दिस सीपैक, चाइनीज ऑब्जेक्टिव फ्रॉम सीपैक. So there are three Chinese main objectives. तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं चाइना के, तीन मेजर ऑब्जेक्टिव, यानी चाइना का मकसद तीन तरह का मकसद है इस सी पैक को लेकर. इस सी पैक को बनाने के अंदर चाइना का मकसद है, वो तीन तरह का मकसद है, और वो मकसद पूरा होगा उसका चाइना का. वो वन बाय वन हम लोग तीनों उसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, तीनों पर्पसेस देख लेते हैं. ओके, देयर आर थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चाइना फ्रॉम सीपैक. तीनों ऑब्जेक्टिव्स को हम वन बाय वन देख लेते हैं. तीनों ऑब्जेक्टिव्स को वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं विद मैप्स. तो तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं. दीज आर द थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स, मेजर ऑब्जेक्टिव्स व्हाट चाइना इज ट्राइंग टू गेट फ्रॉम दिस सीपैक. वो देख लेते हैं. अच्छा, नंबर वन, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइना फ्रॉम दिस सीपैक. मैप देखिए, ये हम मैप से समझने की कोशिश करेंगे. If this is China, this structure is China. If this is China, and you guys knows that the population of China is the largest population in this world. दुनिया की सबसे बड़ी जो population है वो चाइना की population है. सो अगर हम चाइना की पॉपुलेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, इसकी डेमोग्राफी को समझने की कोशिश करें कि हाउ मेनी पीपल आर लिविंग इन विच एरियाज ऑफ द चाइना, तो हमें एक थोड़ा सा जो रफ आइडिया नजर आएगा वो इस तरह का एक नजर आएगा. हम चाइना को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं. इसकी पॉपुलेशन को, इसके पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम दो तरह में इसको डिवाइड कर लेते हैं. दो क्वाड्रेंट्स के अंदर दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेते हैं. द फर्स्ट पार्ट, द ईस्टर्न पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट विच इज वेस्टर्न पार्ट. दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द चाइनीज पॉपुलेशन डेमोग्राफी, कि कहां कहां पर वो किस तरह मौजूद है. तो उसको देखने के लिए चाइना को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में. अब जैसे मैंने आपको दोबारा से पिछली बात दोहराऊंगा मैं कि दुनिया की लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना चाइना किस वजह से? सिर्फ एक्सपोर्ट्स की वजह से. एक्सपोर्ट्स के अलावा चाइना के पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं था कि वो दुनिया में दूसरे नंबर का अमीर तरीन मुल्क बनता. अब दोबारा से चेक कीजिए, एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स का मतलब है कि चाइना ने प्रोडक्शन की, चाइना ने फैक्ट्रीज लगाई, चाइना ने हर घर के अंदर स्मॉल इंडस्ट्रीज, वेरी स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाई, और उस स्मॉल इंडस्ट्रीज की चीजों को
चीजों को उसने पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट किया। अब एक्सपोर्ट करने के लिए डेफिनेटली कोई भी मुल्क अगर बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट्स करना चाहता है तो एक्सपोर्ट करने के लिए जो सबसे कन्वीनियंट और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, जो कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव तरीका, वो है ट्रेडिंग थ्रू शिप्स या एक्सपोर्ट थ्रू शिप्स। अगर हम अपनी चीजें शिप्स के थ्रू दुनिया में भेजेंगे तो जाहिर है ये एक आसान और सस्ता तरीका है, इन विच वी जस्ट नीड अ लार्ज शिप एंड वी विल लोड द कंटेनर्स ऑन दैट शिप। और शिप चूंकि पानी के ऊपर सेल थ्रू होता है इसलिए उसकी रेजिस्टेंस, उसको जो फ्यूल चाहिए वो भी एज कंपेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उनसे कम है। इफ वी आर लुकिंग टू ट्रेड थ्रू aeroplane, then you all guys know that the size of the aeroplane is much smaller as compared to the ships, and aeroplane needs more power, more fuel in order to get into the air. Then we will look towards the train, कि अगर हम जमीनी रास्ते, तो जमीनी और हवाई रास्ते जितने भी हैं आपकी एक्सपोर्ट्स के लिए, these all are very एक्सपेंसिव हैं, टाइम कंज्यूमिंग हैं, और इसके अंदर कम सामान ज्यादा वक्त के अंदर ज्यादा पैसे खर्च करके दूसरे मुल्कों में बिकता है। तो इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर ये फार्मूला है या ये समझा जाता है कि जो भी कंट्री अगर किसी मुल्क के साथ कोई ना कोई सी पोर्ट लगती है तो डेफिनेटली दैट कंट्री इज वेरी फॉर्चुनेट that because that country can have a trade, at least वो जमीनी राब्ता के का मोहताज नहीं है, वो पानी के जरिए से अपनी ट्रेड दूसरे मुल्कों के साथ कर सकता है। और सबसे जो बेहतरीन और सबसे पुराना और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव जो तरीका है ट्रेडिंग का, और जो पूरी दुनिया में शुरू से ही इस्तेमाल होता रहा है, सेंचुरी से इस्तेमाल होता रहा है, वो शिप्स के थ्रू ट्रेडिंग ही है, वो शिप्स के थ्रू है। तो अब चाइना ने अगर पूरी दुनिया के अंदर अपनी एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट के लिए जाहिर सी बात है कि उसने अपना समुंदर यूज किया। अब चाइना के जो समुंदर की लोकेशन है, जो उसकी ओशन की लोकेशन है, विच इज ऑन द ईस्टर्न पार्ट, ये उसके ईस्टर्न पार्ट के ऊपर मौजूद है सारा। दिस इज द ओनली सी पोर्ट विच चाइना हैज, एंड दिस सी पोर्ट इज इन ईस्टर्न पार्ट, साउथ ईस्ट के अंदर। दिस इज द साउथ ईस्टर्न पार्ट of the China. This is the seaport. So what China is doing right now? China क्या कर रहा है कि वो इस सीपोर्ट के थ्रू अपनी एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया के अंदर करता है। वो अपना माल इस सीपोर्ट पे लेके आता है और इस सीपोर्ट से पूरी दुनिया के अंदर वो ट्रेडिंग करता है। यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है कि चलें जी, चाइना को जो ईस्टर्न सी पोर्ट लगती है उसको यूज करते हुए वो दुनिया के अंदर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहा है। लेकिन इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये हो रहा है कि चूंकि सी पोर्ट ईस्टर्न पार्ट के नजदीक है, इस एरिया के नजदीक है, इस सारे एरिया के नजदीक है, इसलिए चाइना की जो पॉपुलेशन है, द कंसंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द चाइना इज very huge in this eastern part. Very huge in the eastern part. The population, the concentration of the population is in eastern part. Eastern part के ऊपर चाइना की population का concentration बहुत ज्यादा हो गया है, just because of the trade facilities, trading facilities. अपनी ट्रेडिंग फैसिलिटीज ईस्टर्न पार्ट में होने की वजह से चाइना की कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ईस्टर्न पार्ट के ऊपर, बहुत ज्यादा है ईस्टर्न पार्ट के ऊपर। अब क्या हुआ है कि पॉपुलेशन ईस्टर्न पार्ट में बहुत ज्यादा हो गई है, जिसको मैं इस तरह से ये लाइंस के साथ ड्रॉ करने की आपको, जबकि एज कंपेयर टू द ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है। Western part is almost empty. This is, so you can clearly see that the concentration of population की जो concentration है, जो saturation है, वो eastern part के अंदर बहुत ज्यादा है।
ईस्टर्न पार्ट में बहुत ज्यादा होने की वजह से हो क्या रहा है कि जितनी प्रोग्रेस है, जितनी सिविक फैसिलिटीज हैं, जितनी हेल्थ फैसिलिटीज हैं, हर वो चीज जो कि एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए इस्तेमाल होती है, में अपना रोल प्ले करती है, वो सब की सब चीजें ईस्टर्न पार्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा हैं क्योंकि पॉपुलेशन ही वहां पर ज्यादा है। और वेस्टर्न पार्ट के अंदर ये सिविक फैसिलिटीज, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है चाइना के वेस्टर्न पार्ट के अंदर। अब इसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि चाइना वेस्टर्न पार्ट के अंदर भी इंडस्ट्री लगा दे, चाइना वेस्टर्न पार्ट के अंदर भी इंडस्ट्री लगा दे, और जब वहां पर भी इंडस्ट्री लगेगी तो डेफिनेटली वहां के लोग भी अमीर होंगे, खुशहाल होंगे, उनके पास फैसिलिटीज आएंगी। ये अगर रेड लाइन में इंडस्ट्री को शो कर रहा हूँ, तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर भी चाइना इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, और वो लगाना चाह रहा है। लेकिन इसके साथ मसला क्या है कि चाइना को इस इंडस्ट्री का माल, इस इंडस्ट्री की प्रोडक्शन, इस इंडस्ट्री की गुड्स इस सी पोर्ट तक लाते हुए, इस सी पोर्ट तक लाने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेवल और बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर है, बहुत ज्यादा ट्रेवल और बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर है विद इन द चाइना। द चाइना को अपने कंट्री के अंदर ही, अपने कंट्री के अंदर वेस्टर्न पार्ट की प्रोडक्शन को अपनी सी पोर्ट तक लाने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, विच इज अबाउट 4700 किलोमीटर्स, अबाउट 47। अगर वेस्टर्न पार्ट की प्रोडक्शन वो अपने सी पोर्ट तक लाना चाहता है तो डेफिनेटली इट विल रिक्वायर अ लॉन्ग जर्नी, एक लंबा रूट है, ये बहुत लंबा रूट है, which is about 4700 kilometers। तो चाइना इज लुकिंग फॉर अल्टरनेट रूट, एक ऐसा अल्टरनेट रूट वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो नजदीक भी हो, रिलायबल भी हो, सिक्योर भी हो, और एक्सेस हो जाए सी पोर्ट तक। यानी मसला तो सी पोर्ट का ही है ना कि सी पोर्ट तक पहुंचना है। तो चाइना क्या कर रहा है कि वो अपनी नजदीक तरीन किसी कंट्री की सी पोर्ट को यूज करना चाह रहा है, यूटिलाइज करना चाह रहा है, ताकि पूरी दुनिया का वेस्टर्न पार्ट का माल उस सी पोर्ट के थ्रू पूरी दुनिया के अंदर बेच दिया जाए और भेज दिया जाए। तो डेफिनेटली बीइंग अ फ्रेंड ऑफ चाइना, पाकिस्तान, मैं आपको पाकिस्तान ड्रॉ कर देता हूँ। So this is Pakistan now. Here comes Pakistan, which is neighboring country of China, friend of China. Pakistan came to provide its services, अपनी जमीन प्रोवाइड की। This is Gwadar, a seaport in Balochistan. This is Gwadar, and now there will be a road, एक रोड होगी, that will start from Kashgar, a city of Xinjiang, एक Xinjiang का city है Kashgar। Xinjiang is a province, western province of China। ये, this is the simple phenomenon। This is the simple thing, the simplest form of the first objective of China। चाइना का जो पहला ऑब्जेक्टिव है उसका सिंपल इलेबोरेशन ये है कि चाइना अपने वेस्टर्न पार्ट के अंदर इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री लगेगी, पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और ईस्टर्न पार्ट के ऊपर जो बोझ आ चुका है इस वक्त ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन का, अबाउट 86%, 86% of the population is living in the eastern part, and only the 14%, only the 14% of the population is currently living in the western part। So China is looking
to make the western part is also populated, उसको populate करना चाह रहा है. There will be a balance of population among eastern part and the western part. बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन करना चाह रहा है, वेस्टर्न पार्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाह रहा है, डेवलपमेंट करना चाह रहा है, लोगों को सिविक फैसिलिटीज देना चाह रहा है, सोशल फैसिलिटीज देना चाह रहा है. इस सब के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके पास एक ही फार्मूला है, उसके पास तरक्की का एक ही फार्मूला है चाइना के पास कि इंडस्ट्री लगा लो, इंडस्ट्री लगाओ, चीजें बनाओ, चीजें दुनिया के अंदर बेचो, पैसा आएगा, उस पैसे से हम लोग अपने मुल्क को तरक्की देंगे. लेकिन अब मसला ये है कि इंडस्ट्री लगा ले चाइना वेस्टर्न पार्ट के अंदर, तो वेस्टर्न पार्ट से लेकर ईस्टर्न पार्ट तक जो उसको एक जर्नी है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है और डेफिनेटली उसको टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है अपनी सी पोर्ट तक पहुंचने के लिए. सो व्हाट चाइना हैज डन, चाइना ने क्या किया है कि उसने पाकिस्तान को कहा कि हमें एक नजदीकी सी पोर्ट चाइना पाकिस्तान की लगती है विच इज ग्वादर, एक रोड बना ली जाए और इस रोड को बनाकर हम लोग क्या करेंगे कि वेस्टर्न पार्ट की जितनी भी प्रोडक्शन है वो इस रोड के थ्रू आएगी और इस रोड के थ्रू वो ग्वादर में शिप्स के थ्रू वो सेल आउट हो जाएगी पूरी दुनिया के अंदर. तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, और द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव उसका है कि अपने वेस्टर्न पार्ट को चाइना इज लुकिंग टू मेक द वेस्टर्न पार्ट मोर प्रोग्रेस, मोर डेवलप्ड, and there will be population equilibrium in the western and eastern part also. So what China is doing all this in order to make the western part of the China develop. ये तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया इसका कि वेस्टर्न पार्ट को उसने डेवलप करना है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, ये पहला ऑब्जेक्टिव है इसका. अब आते हैं जी दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ कि व्हाट इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइना. चाइना का दूसरा ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना के कितने ऑब्जेक्टिव हैं, 3 ऑब्जेक्टिव हैं, 3 मकासद हैं. तो अभी हमने पहला ऑब्जेक्टिव देखा, उसका पहला मकसद देखा, पहला पर्पस देखा. ओके, द सेकंड ऑब्जेक्टिव. दूसरा ऑब्जेक्टिव, दूसरा मकसद, दूसरा पर्पस. उसके लिए मैं आपको मैप बना के दोबारा दिखाऊंगा. मैप से आपको चीजें ज्यादा इजीली समझ आ जाएंगी. पहला ऑब्जेक्टिव भी मैप से ही ज्यादा अच्छा एलैबोरेट हो गया. अब दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं. इफ दिस इज चाइना, अब चाइना को मैं थोड़ा जरा छोटा बनाऊंगा क्योंकि हमने अब वर्ड मैप ज्यादा यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज चाइना. दिस इज पाकिस्तान. फॉर इंस्टेंस दिस इज पाकिस्तान. इसको मुझे थोड़ा सा मजीद बेहतर बनाना चाहिए. ओके, दिस इज पाकिस्तान. दिस इज इंडिया एंड आगे सो ऑन. These are the गल्फ कंट्रीज. गल्फ कंट्रीज का मतलब आपको आता है जिसको मशरिक वुस्ता भी कहते हैं, मिडल ईस्ट भी कहते हैं, गल्फ कंट्रीज. ओके, दिस इज कोरियन स्टेट्स, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. नॉर्थ कोरिया,
एंड साउथ कोरिया, दिस इज जापान, जिसको मैं जे लिख रहा हूं, जापान। ओके, अब चाइना, इस मैप से अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव, एंड दिस इज ऑल द सी। ये तमाम जो मैंने आपको ब्लू लाइन के अंदर बना रहा हूं, ये दिस इज द सी, ये पूरी दुनिया के अंदर सी है, ये पानी है। ठीक है, ये पानी है और बीच में कुछ खुश्की के इलाके हैं जिनको कंट्रीज हम लोगों ने बताया, चाइना है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, गल्फ कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज जिनको हम मिडल ईस्ट कंट्रीज भी कहते हैं, जिनमें सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, मस्कत, बहरीन, इस तरह के जो इलाके हैं, दीज आर कॉल्ड, जो अरब स्टेट्स हैं, अरेबियन स्टेट्स हैं। अच्छा जी, अब चाइना अभी क्या कर रहा है, अपनी एक्सपोर्ट्स को करने के लिए अपना कौन सा समुंदर यूज कर रहा है, जो उसकी साहिल है साउथ ईस्ट के अंदर, वो अपने इस समुंदर को ट्रेडिंग के लिए अपने इस सी पोर्ट को यूज करता है, और यहां से माल पूरी दुनिया के अंदर शिप्स के थ्रू वो भेजता है, इस तरह ये वो सी रूट यूज करता है, ये वाला। ठीक है, यहाँ से फिर गल्फ कंट्रीज से फिर आगे दुनिया के अंदर, इस तरह उसका माल पूरी दुनिया के अंदर बिकता है। अब इस सी रूट को यूज करते हुए चाइना को के साथ दो मसले हो रहे हैं, दो तीन मसले हैं। पहला मसला ये है कि इस सी रूट के ऊपर चाइना के दुश्मन मुल्क भी मौजूद हैं। द फर्स्ट वन, कोरियन स्टेट्स, बोथ कोरियन स्टेट्स, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, देन जापान, then there is Malaysia also, this is Malaysia, जिसको मैंने एम लिखा है। Apart from these countries, there are some small islands also, ये कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं यहाँ पर, इस समुंदर के अंदर, इस सी रूट के अंदर कुछ छोटे आइलैंड्स भी हैं। इन आइलैंड्स के ऊपर, कुछ आइलैंड्स के ऊपर अमेरिका का कब्जा है, कुछ आइलैंड्स के ऊपर जापान का कब्जा है, कुछ आइलैंड्स के ऊपर कोरिया का कब्जा है, कुछ के ऊपर चाइना का कब्जा है। अब जो चाइना का सी रूट है, वो बड़ी हद तक चाइना के जो राइवल कंट्रीज हैं, जो एनिमी कंट्रीज हैं, उनके नजदीक से गुजरता है। चाइना का जो सी रूट है, जहां मोस्टली चाइना अपनी एक्सपोर्ट्स करता है, सो द चाइना इज ऑलवेज इन अ फियर, वो हमेशा से इस फियर में होता है कि द राइवल कंट्रीज ऑफ चाइना, which is Korean states, the Japan, the Malaysia, and then the other islands on which American, USA, or Japan has occupation. All these countries will one day stop the Chinese sail, the Chinese, definitely a sea route, a sea route. So they will, these countries, the enemy countries of China, they will create impediments, they will create hurdles in the Chinese sea route and the Chinese line of trade. और चाइना को ये पता है कि वो ये कंट्री, और ये करते भी हैं ऐसा, ये चाइनीज ट्रेड रूट को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट चाइना वाज लुकिंग फॉर, चाइना क्या देखना चाह रहा था, चाइना वाज लुकिंग फॉर अ एन अनदर रूट, एक अल्टरनेट रूट की तलाश में था कि उसको नजदीक तरीन समुंदर कहाँ से मिलता है, समुंदर कहाँ से मिलेगा उसको, नजदीक तरीन एक ऐसा अल्टरनेट रूट हो कि अगर इसका प्राइमरी रूट, जो पहला रूट है चाइना का, ये डिस्टर्ब भी हो जाए, इस पर जापान, कोरिया, मलेशिया और वो जो आइलैंड जिनके ऊपर यूएसए और जापान का कब्जा है और कोरिया का कब्जा है, अगर वहां पर से इसको, इस सी रूट को, इस ट्रेड रूट को कोई नुकसान पहुंचता भी है, तो अल्टरनेट रूट क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द अल्टरनेट रूट इन विच देयर विल बी अ सी पोर्ट, एक सी पोर्ट भी हो।
तो चाइना को जो सबसे नजदीक तरीन, सबसे रिलायबल, सबसे महफूज, सबसे जो अच्छा सी पोर्ट मिलता है, सबसे जो अच्छा सी पोर्ट मिलता है, वो मिलता है ग्वादर का। ये ग्वादर का, ये येलो कलर में जिसको मैंने पेंट किया, ये ग्वादर का सी रूट, उसको सी पोर्ट मिलता है। इसको नजदीक तरीन, इंडिया के साथ चाइना की ऑलरेडी दुश्मनी है, रशिया के साथ कोई समुद्र नहीं लगता, अफगानिस्तान की बाउंड्री चाइना के साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ भी कोई समुद्र नहीं लगता। सो ले दे के चाइना के पास ट्रेडिंग के लिए दो साहिल लगते हैं, एक उसका अपना साहिल साउथ चाइना सी वाला, जो कि ईस्टर्न पार्ट के अंदर है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द चाइना के अंदर है, इसको साउथ चाइना सी कहते हैं, जिस समुद्र के थ्रू इसको, दिस इज कॉल्ड एज साउथ चाइना सी। जिस तरह हमारे समुद्र, हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो समुद्र लगता है उसका नाम है बहेरा अरब, अरेबियन सी, साउथ चाइना सी, CSCCS, साउथ चाइना सी। तो जो इंडिया के साथ लगता है उसको इंडियन ओशन कहते हैं, जो बंगाल के साथ लगता है उसको बंगाल ओशन कहते हैं, दी ओशन ऑफ बंगाल कहते हैं। तो ये सिर्फ समझने के लिए है, पानी डिफरेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो पानी पाकिस्तान के साथ लगता है, समुंदर लगता है, वो शायद अरबी बोलता है इसलिए उसको बहरा अरब कहते हैं, जो इंडिया के साथ लगता है शायद वो इंडियन हिंदी बोलते हैं, इसको इंडियन ओशन कहते हैं, ये उसकी शक्ल इंडियन जैसी है, या हमारी पानी की, पानी दुनिया में एक ही है, पूरी दुनिया में एक ही पानी है, सिर्फ जिस जिस कंट्री के साथ उसका समुंदर लगता है, समझने के लिए कि वेन एवर वी टॉक अबाउट द अरेबियन ओशन, तो हम कहेंगे ओके ओके, द सी विच इज which connects the Pakistan and the other Gulf countries, तो उसको अरेबियन ओशन कहते हैं। यही पानी जब इंडिया के साथ आएगा तो इसको इंडियन ओशन कह देंगे, यही पानी जब बंगाल के साथ आएगा उसको बंगाल ओशन कहेंगे, यही पानी जब चाइना के साथ आता है तो उसको साउथ चाइना सी कहते हैं। तो पानी दुनिया में एक ही है, समुद्र एक ही है, ऐसा नहीं है कि पानी की शक्लें डिफरेंट है, उनकी क्या वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो ऐसा इतना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए हमने पानियों के भी नाम रखे हुए हैं, समुद्रों के भी नाम रख दिए। ओके, तो चाइना को जो सबसे नजदीक तरीन रूट लगता है वो ये ग्वादर लगता है, ये लाइन। सो दिस लाइन इज कॉल्ड एज सी बैक। अब वो है क्या, तो अगर कभी भी चाइना का ये वाला सी रूट, साउथ चाइना सी वाला सी रूट, ये वाला सी रूट डिस्टर्ब होगा, तो चाइना हैज द सेकंड अल्टरनेट रूट। चाइना क्या करेगा कि अपने ट्रक्स के ऊपर, अपनी लॉरीज के ऊपर सामान यहाँ पर लोड करेगा, 2300 किलोमीटर का फासला तय करेगा, ग्वादर पहुंचेगा, एंड देन देयर विल बी द शिप्स। तो ये उसको एक सी रूट मिल गया, एंड देन देयर विल बी शिप्स, और फिर वो शिप्स के थ्रू अपना माल उसी तरह, देखें वो उसी चीज के ऊपर आ रहा है, बल्कि शॉर्ट वे से। जो माल उसका साउथ चाइना सी से स्टार्ट हुआ, चलते चलते अपने दुश्मन ममालिक के अंदर से चलते 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 इंडिया से गुजर के, इंडिया भी उसका दुश्मन ममालिक है, जब वो यहाँ पहुंचा तो उसने एक लंबा सफर तय किया हुआ था यहाँ पर पहुंचने में। तो यहाँ पर पहुंचने में उसको जो नजदीक तरीन एक रास्ता लगता है वो ये लगता है। तो चाइना ने क्या किया, एक तो अपने दुश्मन ममालिक से बच गया, वो जापान से, कोरियन स्टेट से, मलेशिया से, और वो आइलैंड से जिनके ऊपर किसी के ऊपर जापान का कब्जा, किसी के ऊपर यूएसए का कब्जा, उन आइलैंड से भी, उन राइवल कंट्री से बच गया। और दूसरा, इसने अपना टाइम और कॉस्ट और ट्रेवल भी, जर्नी का जो ड्यूरेशन है वो भी कम कर लिया। सो दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइना। चाइना का दूसरा मकसद इस इफेक्ट से ये है कि चाइना वांट्स टू सिक्योर इट्स ट्रेड लाइन, इट्स ट्रेड रूट, अपने ट्रेड लाइन को, अपने ट्रेड रूट को सिक्योर रखना चाहता है फ्रॉम द राइवल कंट्रीज विच आर कोरियन स्टेट्स, जापान, मलेशिया, यूएसए एंड इंडिया। तो चाइना इज ऑलवेज इन अ लुक फॉर अल्टरनेट ट्रेड रूट, एक अल्टरनेट ट्रेड रूट के लिए
चाइना हमेशा से कोशिश कर रहा था, तो बीइंग अ फ्रेंड कंट्री ऑफ चाइना, पाकिस्तान प्रोवाइडेड इट्स लैंड रूट, एक सड़क प्रोवाइड करने की परमिशन दी है पाकिस्तान ने, ताकि चाइना के तमाम मकासद हल हो सके। तो दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइना, ये चाइना का दूसरा ऑब्जेक्टिव है, जिसमें वो अपनी ट्रेड लाइन को, ट्रेड रूट को सिक्योर करना चाह रहा है। ओके जी, व्हाट इज द थर्ड एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइना? चाइना का तीसरा और आखिरी ऑब्जेक्टिव क्या है? वो भी बड़ा सिंपल सा है, वो इसी मैप के ऊपर हम समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा मकसद, तीसरा गोल, तीसरा मकसद क्या है इसका? द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइना फ्रॉम दिस सी पैक। अच्छा, अब दोबारा से जरा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहा है और सेकंड नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। किस तरह बना? बड़ा सिंपल सा आंसर, एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट्स किस तरह से की थी? प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन किस तरह की थी? उसने फैक्ट्रियां लगाई, हर घर में फैक्ट्री लगाई, स्मॉल इंडस्ट्री, छोटी से छोटी इंडस्ट्री, सुई से लेकर वो बड़ी से बड़ी हैवी मशीनरी तक बना रहे हैं। तो फैक्ट्रियां लगाई। अब फैक्ट्रियां चलती कैसे हैं? क्वेश्चन ये है कि फैक्ट्री का फ्यूल क्या होता है? फैक्ट्री का फ्यूल होता है दी पेट्रोल, ऑयल। तो फैक्ट्री दो तरह से चलती है, या तो बिजली से चलेगी या वो ऑयल से चलेगी। यानी फैक्ट्रीज में, फैक्ट्री को चलाने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो आप फ्यूल डालें, आप उससे पेट्रोल से फैक्ट्रियां चला लें, या आप फैक्ट्रियां चला लें जी आप अपनी बिजली से। तो चाइना जो अपनी फैक्ट्रियां पेट्रोल से चलाता है, डीजल से चलाता है, फ्यूल से चलाता है, ऑयल से चलाता है, तो डेफिनेटली उसको ऑयल रिक्वायर है। अब चाइना के पास अपना ऑयल तो बहुत कम है, बहुत कम ऑयल है चाइना के पास। तो चाइना अपना ऑयल कहाँ से लेता है फिर? चाइना अपनी फैक्ट्रीज के लिए, अपनी गाड़ियों के लिए, जो उसकी ऑयल की कंजप्शन है, जो ऑयल की उसकी डिमांड है, वो ऑयल की डिमांड कहाँ से पूरी होती है चाइना की? दिस इज द क्वेश्चन। तो सिंपल इज दैट कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो गल्फ कंट्रीज हैं। यानी वो सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, मस्कत, ओमान, बहरीन, ये जो कंट्रीज हैं, these are oil rich countries, oil rich countries. These countries have large reservoirs of the oil. तो दूसरे मुल्कों की तरह चाइना भी अपना जो तेल है वो इन्हीं कंट्रीज से लेता है, जिनको आप गल्फ कंट्रीज कहते हैं। जिनको आप क्या कहते हैं जी? गल्फ कंट्रीज। अब डेफिनेटली गल्फ कंट्रीज चाइना तक अगर उन्होंने अपना तेल भेजना है, तो वो भी क्या करते हैं जी कि कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर्स को फिल करते हैं ऑयल से, और उन कंटेनर्स को वो रख देते हैं शिप्स के ऊपर, और वो शिप्स सेल थ्रू करते हैं, समुद्री सफर करते हैं। और वो कौन सा समुद्री सफर करते हैं? डेफिनेटली वो भी यही वाला समुद्री सफर करते हैं, ये साउथ चाइना सी वाला, ये वाला। ये गल्फ कंट्रीज हैं, जिनको अरेबियन कंट्रीज में आपको बता रहा हूँ, सऊदी अरब, ईरान, इराक, ओमान, मस्कत, बहरीन, कुवैत, इराक, शाम, ये वो कंट्रीज हैं जो कि ऑयल, ये ऑयल भेजते हैं इसी सी रूट के थ्रू चाइना को। द सेम सी रूट which China is using for the trade, the same sea route Gulf countries are using to export their oil to the China. अब डेफिनेटली जो चाइना की ट्रेड को मसाइल दरपेश हैं, वही मसाइल गल्फ कंट्रीज की ऑयल एक्सपोर्ट के लिए भी हैं। वही कंट्रीज गल्फ कंट्रीज को की ऑयल एक्सपोर्ट के लिए भी वही मसाइल हैं। तो चाइना ने इस तेल के रूट को भी सिक्योर करने के लिए, बिकॉज एवरीवन नोज दैट द बेसिकली ब्लड ऑफ योर प्रोडक्शन इज ऑयल। जो आपकी प्रोडक्शन है उसका जो एक ब्लड होता है वो ऑयल होता है। विदाउट ऑयल यू कैन नॉट सक्सीडेड इन द एक्सपोर्ट। तो अब गल्फ कंट्रीज को भी एक ऑल्टरनेट ट्रेड रूट मिल गया इस सी पैक के थ्रू, दिस वन, दिस वन।
Got it? So what the Gulf countries has done, they also bypass the rival countries of China and also minimize the travel cost and the travel time. आप ट्रेवल कॉस्ट और ट्रेवल टाइम देख सकते हैं, खुद से इस मैप से देख सकते हैं आप. ठीक है. सो दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव. और थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है कि जस्ट लाइक एज ट्रेड, चाइना आल्सो वांट्स टू सिक्योर द ऑयल इंपोर्ट. अपनी ऑयल की इंपोर्ट को भी सिक्योर करना चाहता है, उसको फ्रीक्वेंट करना चाहता है और उसको रिलायबल करना चाहता है और कम टाइम के अंदर उस ऑयल को चाइना तक पहुंचाना चाहता है. सो दैट्स व्हाई चाइना हैज कंस्ट्रक्टेड दिस huge project in Pakistan which is called as the CPEC, the China Pakistan Economic Corridor. हम्म, ओके जी. अब आते हैं जी पाकिस्तानी ऑब्जेक्टिव. देखें, अब दोबारा से ब्रेनस्टॉर्म करें. चाइना के तीन मकासद हैं, तीनों बहुत बड़े मकसद हैं. वेस्टर्न पार्ट को डेवलप करना, अपनी ट्रेड रूट को सिक्योर करना और फिर ऑयल रूट को भी सिक्योर करना. तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स इतने बड़े ऑब्जेक्टिव हैं कि इन्हीं के सर के ऊपर, इन्हीं की वजह से चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है. अगर ये तीनों ऑब्जेक्टिव चाइना के सीपैक से मीट हो जाएं तो चाइना विल बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. तो भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई हमारे सर पर हमारी रोड यूज करते हुए, हमारी टेरिटरी यूज करते हुए इतना अमीर हो रहा है तो उसका पाकिस्तान को भी तो फायदा होना चाहिए कि नहीं. उसका डेफिनेटली पाकिस्तान को भी फायदा होना चाहिए. अब पाकिस्तान को फायदा क्या होगा उसका? पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव. अब चाइना के ऑब्जेक्टिव तो हमने देख लिए, तीन ऑब्जेक्टिव. अब पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव देखते हैं. अब इस सवाल का दूसरा हिस्सा देखते हैं, पाकिस्तानी ऑब्जेक्टिव्स. अच्छा जी, अब पाकिस्तान के क्या मकासद है इससे? चाइना के तो तीन मकसद हैं, वो हमने देख लिए. पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है सी पैक का? हुँ? इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे थोड़ा सा सजेस्ट करें ताकि आप लोगों की पार्टिसिपेशन भी इसके अंदर हो. तो इसलिए जो स्टूडेंट जरा थोड़ा बताना चाहते हैं, उन्होंने ब्रेन स्टॉर्मिंग की है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाला हुआ है, तो वो काइंडली जरा शेयर करें मेरे साथ कि व्हाट पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दिस सी पैक, कि पाकिस्तान के क्या मकासद हो सकते हैं. चलिए, मेरे ख्याल में आप लोग नहीं पार्टिसिपेट करना चाह रहे. चलिए मैं आपको बताता हूँ कि चाइना के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, पाकिस्तान के क्या ऑब्जेक्टिव हैं. सबसे पहले, अब पाकिस्तान का कोई एक मखसूस ऑब्जेक्टिव नहीं है. पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है इस सी पैक के थ्रू? ओवरकम एनर्जी क्राइसिस. पाकिस्तान चाइना को कह रहा है कि जनाब आप मुझे डैम बनाने में मदद दें, मुझे छोटे छोटे पावर प्लांट्स बनाने में मदद दें, मैं आपका सी पैक कंप्लीट करवा दूंगा. उससे क्या होगा जी कि पाकिस्तान के अंदर ये एनर्जी का क्राइसिस आया. एक एनर्जी का क्राइसिस है, पावर शॉर्टेज का क्राइसिस था, जो बहुत हद तक रिजोल्व भी हो चुका है. वो एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान खत्म करवाना चाह रहा है फ्रॉम चाइना.
चाइना ने पाकिस्तान को कहा है कि पाकिस्तान के जितने बड़े सिटीज हैं उनको आपस में मोटरवेज के थ्रू कनेक्ट किया जाए, तो पैसा चाइना लगाएगा। और सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान ने सी पैक के लिए चाइना को अपनी जमीन दी हुई है, अपनी रोड दी हुई है, तो पाकिस्तान इज गोइंग टू कनेक्ट ऑल बिग सिटीज थ्रू मोटरवेज। पाकिस्तान इज गोइंग टू बिल्ड ग्वादर। ग्वादर की जाहिर है जहां पर ये सी पोर्ट मौजूद है वो ग्वादर है, जो कि पहले बिल्कुल भी एक सिंपल सा इलाका था जहां पर सिविक फैसिलिटीज और डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं थी। तो डेफिनेटली पाकिस्तान चाइना के थ्रू इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इस सी पैक से अपने अंदरूनी जो रेलवे रूट्स थे और जो एयरपोर्ट्स हैं उसको भी बेहतर करवा रहा है चाइना से, क्योंकि दिस विल बी अ ह्यूज एक्टिविटी वंस द सी पैक विल बी कंप्लीटेड। दिस विल बी अ ह्यूज एक्टिविटी। इसके लिए पाकिस्तान की मजीद रोड्स का ठीक होना, पाकिस्तान के मेजर सिटीज का एक दूसरे से कनेक्ट होना, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स का ठीक होना और पाकिस्तान की रेलवे का ठीक होना बहुत जरूरी है। So China is investing on all these things in which Pakistan was lacking. Pakistan was behind, far behind. So China is investing in all these sectors, in railway, in airports, in Gwadar, and to construct the motorways, and especially the primary objective of Pakistan is to overcome the energy crisis. Energy crisis को खत्म करने या कम करने या खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने चाइना की सपोर्ट ली है फ्रॉम दिस सी पैक। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज थ्रेट्स टू सी पैक। अब ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। देखें आप इसको इस लिहाज से देखें कि चाइना ने दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बनना है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। तो ये कितना अहम प्रोजेक्ट होगा, कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और पाकिस्तान भी इस सी पैक के थ्रू अपनी इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर को, डेवलपमेंट को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस सी पैक इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर पाकिस्तान आल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द की प्रोजेक्ट्स फॉर पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के लिए इतना अहम प्रोजेक्ट है, डेफिनेटली उसकी सिक्को उसको थ्रेट्स भी तो होंगे। तो थ्रेड्स हैं जी सी पैक को दो तरह से, देर आर टू टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। द फर्स्ट वन है जी इंटरनल थ्रेड्स एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल थ्रेड्स। इंटरनल थ्रेड्स एंड एक्सटर्नल थ्रेड्स। इंटरनल थ्रेड्स जो हमारे अपने मुल्क के अंदर से हैं, इस सी पैक को थ्रेड्स हैं। इस सी पैक को जो नुकसानात हैं या उनको जो अंदेशे लाक हैं। और दूसरे हैं जी एक्सटर्नल। ओके जी, अब बारी बारी देख लेते हैं कि व्हाट आर इंटरनल थ्रेड्स एंड व्हाट आर एक्सटर्नल थ्रेड्स फ्रॉम दिस ऑफ दिस सी पैक। जी इंटरनल थ्रेड्स कौन कौन से हो सकते हैं? इंटरनल थ्रेड्स कौन कौन से हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर से? सबसे पहले है जी
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी होनी चाहिए जो कि सीपैक को थ्रेट ना करे। करंटली पाकिस्तान हैज विटनेस्ड अ वेरी unfortunate wave of terrorism in Pakistan right after the 9/11। 9/11 जो हुआ, जो कि पाकिस्तान का ना तो प्लान था, 9/11 ना पाकिस्तान की जमीन में हुआ, वो that was purely a plan by a terrorist organization Al Qaeda which was residing in Afghanistan। So there were Afghani people, there were people of Al Qaeda who planned this attack। उन्होंने प्लान किया और उनकी दुश्मनी इंडिया यूएसए के साथ थी। यूएसए ने अटैक किया, अफगानिस्तान के ऊपर बदला लिया। बट इन ऑल दिस सिचुएशन, बट इन दिस ऑल दिस एडवेंचर, पाकिस्तान फ्री के अंदर ही ड्रैग हो गया इस वॉर के अंदर, विच वाज नॉट अ वॉर ऑफ पाकिस्तान, नॉट अ वॉर ऑफ पाकिस्तान। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आपके हमसाए का एक मुल्क, हमसाए के अंदर एक घर दूसरे हमसाए पर अटैक करे और जंग बर्दाश्त करनी पड़ जाए आपको, जंग आपको बर्दाश्त, जब उनकी आपस की लड़ाई हो तो नुकसान आपका हो। तो यही सिचुएशन, ये टेररिज्म का जो एक बहुत लंबी रे थी, एक अरे थी, इसके अंदर एक वेव थी, ये पाकिस्तान ने विटनेस किया है आफ्टर 9/11, ये 2018-19 तक। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तानी आर्मी पर्सोनेल्स, पाकिस्तान की आर्मी ने और बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली ऑपरेशन लॉन्च किए हैं। आपको सब पता ही है कितने बॉम्ब ब्लास्ट और वो कितनी वो सब चीज़ें, स्पेशली इन द बलोचिस्तान। So the majority part of this CPEC will run through the Balochistan। Balochistan से गुजरेगा। तो definitely the situation of Balochistan, the law and order situation, the terrorism free situation of Balochistan and Pakistan is the need of the hour for the CPEC। Without this law and order, good law and order situation of Pakistan, CPEC will just a dream. It will be a dream. It will not be a reality, not only for the China but also for the Pakistan। So the law and order situation of Pakistan should be up to the mark, especially in Balochistan and Pakistan, in order to complete this CPEC। So this is the first। The second thing, democracy। Democracy in Pakistan is very much needed to complete the CPEC। देखिए, दुनिया के अंदर जब भी किसी मुल्क ने तरक्की की है, जब भी कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हैं, जब भी किसी मुल्क ने तरक्की की, तो वहां पर डेमोक्रेटिक रूल था, डेमोक्रेसी का इक़्तिदार था, डेमोक्रेसी की हुकूमत थी। लेकिन जब भी किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि वहां पर डेमोक्रेसी का ना होने की वजह से वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। So CPEC, if the CPEC is so large, so above than the life, then there must be a democracy in Pakistan. There must not be any other power, any other power. I'm not going to name any other power. I would just say there must not be any other power that will derail the democracy of Pakistan। The democracy of Pakistan should persist, should continue रहनी चाहिए, persist रहनी चाहिए, no matter which political party will rule, no matter, either it is PMLN, either it is Pakistan People's Party, either it is PTI, either it is some other political parties of Pakistan, whatever the ruling situation, but the rule should be democracy। democracy hona chahiye, no other party, no other any other power should come to control this country। So these are the two internal threats। if democracy derails, CPEC will definitely derail। if law and order situation of the Pakistan will be compromised, the situation of the CPEC will also be compromised। So this is the first internal threats, these are the internal threats। and now the external threats। एक्सटर्नल थ्रेट्स बेबहा एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, पूरी दुनिया ही एक्सटर्नली थ्रेट करेगी पाकिस्तान को डेफिनेटली। जो चाइना का दुश्मन मुल्क है वो समझ लें पाकिस्तान का दुश्मन भी बन गया, क्योंकि जो चाइना का दुश्मन है वो नहीं देखेगा कि चाइना विल बिकम द रिचेस्ट कंट्री, चाइना मजीद तरक्की करे। तो डेफिनेटली अगर चाइना तरक्की कर रहा है पाकिस्तान की जमीन को यूज करके, तो ऑल दोज कंट्रीज विल आल्सो बी द
threat to the Pakistan, threat to the CPEC. वो कौन कौन से हैं जी? इंडिया, USA, definitely Israel, definitely यूरोप को चले निकाल दें, but all these countries, the India, the USA and the Israel, these countries are not in the favor. They always find the CPEC as a threat to their economy. ये इनकी इकोनॉमी के लिए एक थ्रेट है CPEC. तो इंडिया के अपने इश्यूज हैं CPEC के साथ, USA के अपने इश्यूज हैं CPEC के साथ, इसराइल के अपने इश्यूज हैं CPEC के साथ. So all these countries are in a look, or they are in a surge to make this CPEC wind up. So these are the external threats: India, USA and Israel. G. So here the CPEC is completed here. If there is any question you can ask. फिर हम अगली बातों की तरफ आते हैं. If there is any question, you are free to ask about this CPEC question. Okay, one thing I have missed in the CPEC: the cost of CPEC. The cost of CPEC. So initially in 2014, when this project was proposed by the Chinese Prime Minister, Chinese President ने जब ये propose किया, and there was a government of PMLN at that time. So both the leaders met in China. दोनों leader नवाज शरीफ और वेंग जियाबाओ ये चाइना के अंदर मिले और दोनों ने इस CPEC के ब्लूप्रिंट्स के ऊपर साइन किए. Initially it was proposed that there will be $45 billion, $45 billion that China will invest on this CPEC. इस CPEC के ऊपर इन्वेस्ट करेगा, पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्ट करेगा about $45 billion. Now how much the $45 billion is? If you guys know, अगर आपको शायद पता हो तो पाकिस्तान का सालाना जब बजट बनता है, पूरे साल का जब बजट बनता है, क्या इस पूरे साल में कितना पाकिस्तान किस किस चीज के ऊपर पैसा खर्च करेगा, कहां से कमाएगा. So the entire budget cost is about $45 billion. पाकिस्तान को जो पूरा एक साल का बजट बनता है कि एक साल में उसने अपने मुल्क में तनख्वाहें देनी है, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, डेवलपमेंट करनी है, और उसने ये सब चीजें, तो ये $45 बिलियन पाकिस्तान को रिक्वायर होते हैं, ऑलमोस्ट $45 to $50 बिलियन हर साल अपने खर्चे चलाने के लिए. तो इक्वल टू द पाकिस्तान एनुअल फिस्कल बजट, annual budget equal to the, it was initially proposed that $45 billion will be enough for the CPEC, but now this project is getting bigger and bigger day by day. इसमें मजीद चीजें ऐड होती जा रही हैं. Now the cost of this project has become up to the $65 billion. Almost 50% of the amount has also been added in this CPEC. So you can say that the cost of this project is so huge, which is big, which is already about the 1.5 years Pakistan's total budget. पाकिस्तान के टोटल बजट 1.5 साल के टोटल बजट के का इक्वल है this entire project of CPEC. So you can say that the seriousness and the strength of this CPEC in terms of the cost कितने, और ये टोटल बजट हमें दे रहा है सारे का सारा चाइना इज इन्वेस्टिंग. डेफिनेटली चाइना वापस लेगा, लेकिन उसके कई डिफरेंट तरीके हैं. इजी टर्म्स के ऊपर पाकिस्तान से पैसे वो वापस लेगा, बट राइट नाउ चाइना इज इन्वेस्टिंग अबाउट $65 बिलियन, विच इज इक्वल टू द 1.5 years of budget of Pakistan. So this is the cost of the CPEC. Now, if there is any question, you can raise your hand about the CPEC. This is important topic, and definitely it will be your exam topic also. जी अबू बकर सिद्दीक. अस्सलाम वालेकुम सर.
सर मैंने पूछना था कि चाइना पाकिस्तान को इसका फ्यूचर के अंदर कोई नुकसान भी हो सकता है अगर बिल फर्ज पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कभी टेंशन बढ़ती हैं, तो इसको पाकिस्तान को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि ना कि जो चाइना है इतनी ह्यूज अमाउंट पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है जो पाकिस्तान के फिजिकल बजट के बराबर है, तो इसका कोई हो सकता है नुकसान फ्यूचर में पाकिस्तान को? जी, आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये गुड क्वेश्चन है। डेफिनेटली जब कोई एक कंट्री इतनी ज्यादा अमाउंट आपको दे रहा है, तो उसको पाकिस्तान को उसके हर पहलू को देखना पड़ता है, हर उसके एस्पेक्ट को देखना पड़ता है कि व्हाट माइट बी द चाइना विल डू फॉर पाकिस्तान इन नियर फ्यूचर। हो सकता है कि चाइना विल बिकम अनदर ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर पाकिस्तान, जो कि अमूमन कहा गया है, अब ये देखा गया है। यस सर। ठीक है, कि चाइना में बिकम द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर पाकिस्तान। दैट स्टार्टेड इन 1603 फॉर सब कॉन्टिनेंट। जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब कॉन्टिनेंट के लिए किया, लेकिन इसके अंदर ना अब सबसे पहले बिहेवियर देखना पड़ता है, कंट्रीज का बिहेवियर देखना पड़ता है। देखें, हर कंट्री का अपना बिहेवियर होता है। अब वो बिहेवियर क्या है? वो बिहेवियर ये है कि जो आ, हमने पार्टीशन से पहले वो सारा कोर्स पढ़ा हमने, उसके अंदर हमने ब्रिटिश एम्पायर को बढ़ते हुए देखा। सब कॉन्टिनेंट वाज द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। हमने वर्ल्ड वॉर वन देखी। वर्ल्ड वॉर वन के बाद ब्रिटिश एम्पायर मजीद बढ़ गई, उसका कब्जा हो गया मुल्कों के ऊपर। सो एवरी बिग नेशन, एवरी बिग कंट्री हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियोलॉजी। उसकी डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है। अब जो बर्तानिया की आइडियोलॉजी थी, दैट वाज क्लियरली द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। दैट वाज क्लियरली क्लियर कट एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि अपनी सरहदें फैलाओ, मुल्कों पर कब्जे करो, मुल्कों को अपनी सरहद के अंदर लेके आओ, अपनी बाउंड्रीज फैलाते रहो, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। बट चाइना इज नॉट फॉलोइंग द expansion of territory ideology, but the China is also following the expansion of economy. Expansion of economy. एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी के लिए बर्तानिया ने जो करना था वो किया, जो उससे हो सकता था उसने अपनी सरहदें मुल्कों पर कब्जा करने के लिए वो किया। चाइना भी अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड करने के लिए जो उसे हो सकेगा वो करेगा। बट एज कंपेयर टू द अदर बिग नेशन, अदर बिग कंट्रीज, डेफिनेटली चाइना को बायलेटरल रिलेशन बनाने हैं। यानी डेफिनेटली चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ेंगी तब जब पाकिस्तान के अंदर सीपैक कंप्लीट होगा, सीपैक तरक्की करेगा। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चाइना इज आल्सो इन अ माइंड के पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाइना के लिए बहुत जरूरी हैं। तो कभी मेरा ख्याल है ऐसा होने नहीं दिया जाएगा कि रिलेशन एक रोलर कोस्टर राइड के ऊपर आ जाएंगे, जिस तरह पाकिस्तान यूएसए के रिलेशन थे। तो पाकिस्तान के यूएसए के रिलेशन तो बहुत अजीब से रिलेशन है, कभी बहुत गर्म हो जाते हैं, आपस में दोस्ती हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा एक दूसरे पर इल्जाम तराशी और एड भी बंद होगी और ट्रेड भी बंद होगी। लेकिन मेरे ख्याल में चाइना विल नेवर एवर डू दैट, बिकॉज चाइना वांट टू सस्टेन इट्स इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को सस्टेन रखना चाहता है। लेकिन फिर भी वैलिड है आपका क्वेश्चन। दैट विल बी इन द माइंड ऑफ पाकिस्तानी लीडर्स आल्सो। पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उनको भी ये चीज देखनी पड़ेगी कि पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए कि चाइना फ्रीली पाकिस्तान के अंदर आके अपनी गेम प्ले ना कर सके। मतलब वही बात ना हो जाए कि पाकिस्तान एक जस्ट लाइक एज कॉलोनी बन जाए चाइना की। तो पाकिस्तान को फ्यूचर के अंदर अपने जितनी मूव्स हैं वो बड़ी टेक्टफुली देखनी पड़ेंगी। जो बज़ाहिर अभी तो लग रहा है कि बहुत ईजी है, लेकिन माइट बी नियर फ्यूचर इट विल बी अ टफ आस्क फॉर पाकिस्तान regarding the CPEC. So Pakistani leaders should be very keen, should be very vigilant, and should open their eyes and be far sightedness, मुस्तकबिल का उनको पता होना चाहिए, and on those terms.